Hello students, today elements of accounts chapter 1 accounting and its a terminology. Today we are going to learn about multiple choice question and short question in chapter 1. This is our 2019-20 result is given. Select appropriate option for each question. Under barter system, which of the following is not correct? But in barter system, exchange of money for product, that is not correct because in barter system money is not available. जब बार्टर सिस्टम था तो मनी था ही नहीं, तो उस टाइम प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट देना पड़ता था, प्रोडक्ट के बदले सर्विस देना पड़ता था, या प्रोडक्ट और सर्विस के एक्सचेंज में प्रोडक्ट और सर्विस देनी पड़ती थी. सो एट दैट टाइम मनी इज नॉट अवेलेबल, सो नॉट करेक्ट. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Exchange of money for product. So answer is A. What is the limitation of accounting? So in accounting, limitation stable value of money, because account assume that value of money is stable, but practically it is not possible due to inflation, price rising in the market. तो जब प्राइस राइज होता है तो वही प्राइस के अंदर फ्यूचर के अंदर वो अमाउंट आप वो चीज़ परचेज नहीं कर सकते. जैसे 5 इयर्स पहले आपने मशीनरी 50,000 में ली थी, तो आज वही मशीनरी आप 50,000 में नहीं ले सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस राइज हो गई. तो 50,000 मनी तो वही है 50,000, लेकिन वो 50,000 में आप मशीन परचेज नहीं कर सकते. सो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. आंसर इज डी. Accounting is known as, so accounting is known as historical accounting. So answer is A, because in accounting all the assets are recorded at cost price. तो वहां पर जो भी एसेट है आपको कॉस्ट प्राइस के अंदर ही रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल अकाउंटिंग मेथड. Which type of transactions are recorded in accounting? So economic transactions are recorded in books of account. Economic transactions are those transactions which can be measured in terms of money. So answer is A. Which one is an intangible asset from the following? Intangible asset, any asset which cannot be seen, you cannot be touch it, that is called intangible. जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल है. तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है. सो आंसर इज सी. विच वन इज अ फिक्टिटियस एसेट? एनी एसेट डू नॉट हैविंग फिजिकल एक्सिस्टेंस and realization value is 0, that is called fictitious asset. B, debenture discount. So answer is B. Which accounting system is developed in Indian subcontinent? So an ancient accounting system in India, that is C, देसीनामा. तो सबसे पुरानी इंडिया के अंदर देसीनामा है. उसके अंदर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट रहती थी, रोजमेड और खाता वही. सो आंसर इज सी. Which accounting system is widely used nowadays? So nowadays double entry system is widely used all over the world, because this is a scientific accounting method invented by Italian mathematician Luca Pacioli in 1494. So answer is B. Number 10. Item which are traded by traders to earn a profit is known as.
So item traded by traders, that is called goods. For provision stores, provision item is a goods. For stationery stores, businessman traded stationery, that is called goods. आप जिसका बिजनेस करते हो तो वो आइटम आपके लिए गुड्स हो जाएगी. सो आंसर इज बी. A person from whom goods is purchased on credit is known as blank for business. तो आपने जिससे गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, तो जब तक आप उसको अमाउंट नहीं दोगे तब तक वो आपके लिए क्रेडिटर्स हैं. सो बी, क्रेडिटर्स. 12 नंबर, अ पर्सन टू होम गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट नोन एज. तो जब आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है और आपको उससे अमाउंट लेनी बाकी है, तो जब तक वो आपको अमाउंट नहीं देगा वो आपके लिए डेटर्स हैं. When goods are sold on credit to customers, so those customers are known as debtors. So answer is A. Another name of Desinama system is, so Desinama system is known as वही खाता. वही का मतलब थ्रेड, जो जिसको डोर बोलते हो, तो उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर ऐसे थ्रेड आते हैं जिसको वही बोलते हैं. तो देसीनामा इज नॉन एज वही खाता. आंसर इन वन और मोर सेंटेंस. वो प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस. सो एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. सो ऑनर ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस. जिसका बिजनेस है उसको ही कैपिटल तो लानी पड़ेगी. What is a bad debt for business? An amount which is not recovered from debtors, that is called bad debt. अगर आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा है, आप नेसेसरी एफर्ट लगाते हो, फिर भी उसके पास से अमाउंट कलेक्ट नहीं होती, तो वो आपके लिए बैड डेट हो जाएगा. एंड बैड डेट इज अ लॉस फॉर बिजनेस. ये आपके लिए लॉस है. सो बैड डेट इज अ लॉस फॉर बिजनेस. वो बिजनेस के लिए लॉस हो जाएगा. व्हाट इज द स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी? Accounting assumes that the value of money remains stable. This concept is known as biggest limitation of account. अकाउंट के अंदर ऐसी धारणा की जाती है, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल, मतलब मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती. बट दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंट. क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होता है, सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस. मनी तो वही रहता है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. जैसे आज आपने एक्टिवा 80,000 में परचेज किया है, अब 5 इयर्स के बाद वही 80,000 लेकर जाओगे तो वही एक्टिवा आपको 80,000 में नहीं मिलेगा, 1,20,000 1,40,000 देना पड़ेगा. अकाउंट सोचता है, accounting assumes that the value of money remains stable, but practically it is not possible. So it is the limitation of accounts. What is, डाउट नहीं है, ये गलती हो गई, डबल लिखना है. What is double entry system? डबल एंट्री सिस्टम क्या है? Based on basic rules of accounting, what will be the debit effect and credit effect of each transaction means double entry system of accounting. So double entry system was invented by Italian mathematician Luca Pacioli in 1494. So any accounting system is based on rules of accounting. What will be the debit effect and credit effect of each transaction? That is called double entry system. As per double entry system, every transaction having two effects. If one effect is given on debit side, second must be given on credit side.
तो डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स है कि हर ट्रांजेक्शन की आपको दो इफेक्ट देनी पड़ेगी। अगर एक इफेक्ट आप डेबिट में देते हो तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट में देनी पड़ेगी। डबल का मतलब है टू। सो बेस्ड ऑन बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, what will be the debit effect and credit effect of each transaction, that is called double entry system। ये इटालियन मैथमेटिशियन था ल्यूका पेसियोली, उसने 1494 में इन्वेंट की है। एंड दिस सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इज अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। सो इंक्लूडिंग इंडिया, दिस मेथड इज यूज्ड वाइडली इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज वही मेथड का यूज हो रहा है। स्टेट वेदर डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम और एक्सपेंस। अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो वो आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम ऑफ बिजनेस। आपको डिस्काउंट मिला है तो वो आपके लिए इनकम हो जाए, इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। Which accounting method is a scientific method of writing books of account? अकाउंट के अंदर कौन सी मेथड है जो साइंटिफिक मेथड है, जो आज वाइडली यूज हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर? सो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम is known as scientific method of writing books of accounting। तो डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक मेथड है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका यूज हो रहा है। नाउ आंसर इन शॉर्ट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बेसिकली लॉन्ग थियरी नहीं आ रही, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए। एक्सप्लेन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है वो समझते हैं। अ ट्रांजेक्शन विच कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो ऐसे जो कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसका मनी के अंदर मेजरमेंट निकल सकता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। लाइक व्हेन यू परचेज अ स्टेशनरी, सो वैल्यू ऑफ स्टेशनरी इज मेजर्ड इन मनी। When you purchase a mobile, so value of mobile is measured in terms of money. When you purchase Activa, so value of Activa is also measured in terms of money. That is called economic transaction. And economic transaction is also known as business transaction. तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका मनी के अंदर मेजरमेंट हो सकता है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं। एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की जो बुक है उसके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन है उसका मनी के अंदर मेजरमेंट है वही ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टेट द टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या है जिसको आप जवाबदारी बोलते हो? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स, और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नॉन एज लाइबिलिटीज। अगर आपने कहीं से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है और एसेट परचेज की है, so that is called liabilities because this amount is payable in future। क्योंकि अभी आपने क्रेडिट में लिया है लेकिन फ्यूचर में तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो जब तक आप अमाउंट नहीं देते वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। अगर आप कैश के अंदर परचेज करोगे तो लाइबिलिटी नहीं होगी। बट व्हेन वी परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, so it is our liabilities because this amount we have to pay in future। And sometimes amount payable for borrowed money is known as liabilities। अगर आपने कहीं से अमाउंट बोरो किया है, कहीं बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन आपको फ्यूचर में रिटर्न करनी पड़ेगी, और जब तक वो अमाउंट आप रिटर्न नहीं करोगे वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी।
it is treated as liability till it is not paid by the business. Liability can be classified as under. So look at the liabilities we already discussed in our past lecture. On the basis of relation internal liabilities and external liabilities. On the basis of time, current liabilities, non-current liabilities, and external liabilities, current liabilities and non-current liabilities. इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? अकाउंट के अंदर ऑनर और बिजनेस को सेपरेट रखते हैं. जब ऑनर ने बिजनेस को कैपिटल दी तो वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर ऑनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है. अकाउंट के अंदर दोनों डिफरेंट चीज है. मेरा क्लासेस डिफरेंट है और मैं डिफरेंट चीज हूं. जैसे किसी का हार्डवेयर का स्टोर है तो अकाउंट के लिए हार्डवेयर का ऑनर डिफरेंट चीज है और बिजनेस डिफरेंट चीज है. अगर ऑनर ने कैपिटल दी है तो अकाउंट के अंदर वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी. एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? एनी लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को अमाउंट देना बाकी है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाएगा. जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना बाकी है, तो वो थर्ड पार्टी है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज, एनी लाइबिलिटीज which duration is less than 1 year, that is called current liabilities. अगर ऐसी कोई भी लाइबिलिटी है जिसका ड्यूरेशन 1 साल से भी कम है, that is called current liabilities. And any liabilities duration is more than 1 year, that is non current liabilities. जैसे मैंने आपसे अमाउंट बोरो किया है, मैंने आपसे 10,000 लिया, तो अगर मैंने 6th मंथ के लिए लिया या 7th मंथ के लिए लिया तो उसका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है, तो वो मेरे लिए करंट लाइबिलिटी होगी. लेकिन मैंने आपसे 10,000 बोरो किया 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए, तो 2 या 3 इयर्स के अंदर मेरे को अमाउंट रिटर्न करना है, तो 2 इयर्स या 3 इयर्स, सो ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज. डिस्कस टाइप्स ऑफ एसेट्स. Assets means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of business and has economic value. In other words, asset means economic resources which are held by owner and from which there is an expectation of economic benefit to the business in future. Now, classification of assets. एसेट जिसको आप प्रॉपर्टी बोलते हो, मिलकत गुजराती में बोलते हो. व्हाट इज एसेट? तो एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू. ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी आइटम जिसके ऊपर आपकी खुद की ऑनरशिप है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगा. जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आप जो मोबाइल लेकर बैठे हो या लैपटॉप लेकर बैठे हो तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि वो उस पर आपकी ऑनरशिप है, आपकी खुद की है और उसकी मार्केट के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगा. फॉर बिजनेसमैन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दिस आर एसेट्स. तो मेन एसेट का क्या है? तो एसेट का रीजन ये है कि उससे आपको फ्यूचर के अंदर भी बहुत बेनिफिट मिलेगा. एसेट मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर हेल्ड बाय ऑनर्स. ऑनर क्यों लेता है? कि इससे आपको फ्यूचर के अंदर भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा. जैसे आपने शॉप परचेज की तो फ्यूचर के अंदर भी उसका बेनिफिट मिलेगा. अगर शॉप होगी तो आप इजीली सेल भी कर सकोगे. And assets are classified in 3 categories. Non-current asset. Any assets whose duration is more than 1 year, that is called non-current asset. ऐसी कोई भी एसेट है जिसका ड्यूरेशन 1 साल से भी ज्यादा है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, योर एक्टिवा,
laptop, these are non-current assets because duration is more than 1 year. Current assets, any assets, duration is more less than 1 year. ऐसी कोई भी एसेट जिसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, 1 या उससे भी कम है, and easily converted into cash. Current assets are those assets duration is less than 1 year and easily converted into cash. जैसे डेटर्स है, वो करंट एसेट है, अगर आप कलेक्शन करोगे उसके घर पे जाके या दुकान पे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. बैंक बैलेंस है तो बैंक में से विड्रॉ कर लो तो कैश में हो जाएगा. स्टॉक है तो स्टॉक को अगर आप बेच दोगे तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दीज आर करंट एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स, वैसे अभी तो ऐसी कोई एसेट होती नहीं है, लेकिन आपकी बुक के अंदर मेंशन किया तो मैं उसका डिस्कशन करता रहता हूं. fictitious assets are those assets which do not having physical existence and realization value is zero. ऐसी एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बेचोगे तो जीरो मिलेगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, वो फिक्टिशियस एसेट है. जैसे आपकी दुकान का इनॉग्रेशन है, उस दिन आपने प्राइमरी एक्सपेंस किया, तो सपोज 1 लाख का किया, तो फिर दूसरे दिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. कोई कंपनी ने शेयर डिस्काउंट में इश्यू किए या डिबेंचर इश्यू किए डिस्काउंट के अंदर, तो वो फिक्टिशियस एसेट हो जाएगी. एक्सप्लेन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस. अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है. साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. These rules and principles are universally accepted. Accounting is also a science. Its formation is based on rules and universally accepted. Principles prepared by human beings to record economic transactions of the business, they are classified on the basis of accounting rules. तो अकाउंटिंग को क्यों साइंस कहा जाता है? आपने आगे भी साइंस पढ़ा होगा, 8, 9, 10, इवन अब तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से साइंस आता है. साइंस मीन्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज जिसको साइंस बोलते हैं. एंड साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल. जो साइंस है पूरा वो रूल्स और प्रिंसिपल्स पर चलता है. एंड दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. वो रूल्स है वो सभी एक्सेप्ट करें. यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस. अकाउंट भी साइंस है. क्यों? इट्स अ फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अकाउंट का भी बेसिक रूल्स है, मैं सेकंड चैप्टर में आपको सिखाऊंगा. डेबिट क्रेडिट के रूल्स है, किसको डेबिट करना है, किसके क्रेडिट करना है. एंड दिस रूल्स इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है. आपने वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीख लिए, अकाउंटिंग सीख लिया, तो आप यूएसए के अंदर जाके भी अकाउंट लिख सकते हो और यूके के अंदर भी लिख सकते हो. एंड प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स. जब भी किसी को अकाउंट लिखना है तो उसको अकाउंट के जो रूल्स है और प्रिंसिपल उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. To record transaction and individual skill is not required. Only rules are to be followed. जब आपको अकाउंट लिखना है तो आपको रूल्स क्या है वो क्लियरली याद होने चाहिए. When accounts are prepared by different persons, the process of preparation accounts and its result would remain the same. अगर अकाउंट के प्रिंसिपल सबको आते हैं तो अगर कोई भी पर्सन अगर अकाउंट लिखता है लेकिन वो उसका प्रॉफिट सेम ही आएगा. ड्यू टू रूल्स एंड प्रिंसिपल अकाउंटिंग इज नॉन एज साइंस. तो इसीलिए अकाउंट को साइंस बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम साइंस अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज आर्ट ऑल्सो. अकाउंट को आर्ट क्यों बोलते हैं?
कि अगर आपको अकाउंट लिखना है तो उसके लिए एक आर्ट होनी चाहिए, एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपके लिए वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब आपका 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स हो जाएगा, आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स लिख लोगे तो फिर अच्छे से अकाउंट लिख सकते हो। अभी आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको रूल्स और प्रिंसिपल मालूम नहीं है। एक बार रूल्स और प्रिंसिपल आपको मालूम हो गए तो यू आर बिकम मास्टर इन अकाउंट। फिर आपके पास एक आर्ट आ जाएगी। जैसे पेंटिंग करने के लिए आर्ट चाहिए, डांसिंग के लिए आर्ट आपको आनी चाहिए। तो एक बार आपने रूल्स और रेगुलेशन पढ़ लिए तो फिर आपको एक अच्छी आर्ट मिल जाएगी। फिर आप इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट लिख सकते हो। इवन आपका जो बिजनेस है उसका अकाउंट भी लिख सकते हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग फैक्ट्री में जाकर अकाउंट लिखते हैं, अपनी खुद की दुकान या शोरूम के अकाउंट लिखते हैं। तो एक बार आपको रूल्स और प्रिंसिपल आ जाना चाहिए और जैसे आपको मिल जाएगा फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो आर्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप इजीली मेंटेन कर सकोगे। एक्सप्लेन अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंट है उसको बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? Accounting is known as a language of business. Through accounting, information of business transaction is provided. तो अकाउंट को बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग से आपको इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हुए, परचेज कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी एसेट, वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। थ्रू लैंग्वेज, either by writing or speaking or analyzing or interpreting any content is described or explained by one person to other. लैंग्वेज है उसको आप लिखकर किसी को बता सकते हो, या स्पीकिंग आप बोल के उसको बना सकते हो, या एनालाइजिंग या इंटरप्रेटिंग करके भी आप उसको समझा सकते हो। जैसे अभी हम हिंदी के अंदर आपको डिस्कशन कर रहे हैं या इंग्लिश के अंदर या गुजराती के अंदर। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या है कि जिससे आप कोई एक बात लिखकर या बोलकर या उसका एनालाइज करके उसको दिखा सकते हो, विथ एक्सप्रेशन भी उसको बता सकते हो। थ्रू लैंग्वेज, आइदर बाय राइटिंग और स्पीकिंग और एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग एनी कंटेंट इज डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन्ड बाय वन पर्सन टू अदर। जैसे अभी मेरे को आपको सिखाना है तो मैं बोल के आपको सिखा रहा हूं, और ये आपकी स्क्रीन पर जो पीपीटी देख रहे हो वो राइटिंग के अंदर है, तो एक लैंग्वेज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। सो वी कैन अवर ट्रांसमिट अवर आइडिया टू अदर्स थ्रू वेदर इट इज स्पीकिंग, वेदर इट इज राइटिंग। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटिंग by providing information of business activities or results to be related parties। जैसे आप बोलकर या लिखकर सामने वाले को बता सकते हो, तो ऐसा ही अकाउंट का एक फंक्शन है कि इससे आप इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और रिजल्ट सभी पार्टी को दिखा सकते हो। जैसे अकाउंट लिखा है तो आपका कितना प्रॉफिट है, तो उससे सामने वाले को मालूम हो जाएगा भाई इतना प्रॉफिट है, ये सॉल्वेंसी पीरियड में है या इनसॉल्वेंसी है, बिजनेस की क्या एक्टिविटीज हुई है, तो सब उसको मालूम हो जाएगा। लैंग्वेज इज यूज्ड विथ इट्स ओन प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स। तो कोई भी लैंग्वेज है तो उसके खुद के एक नॉर्म्स, उसके रूल्स रहते हैं। अकाउंटिंग इज ऑल्सो यूज्ड विथ ओन प्री डिटरमाइंड रूल्स। जैसे लैंग्वेज के खुद रूल्स है बोलने के, ऐसे अकाउंटिंग के भी खुद के रूल्स है, डेबिट क्रेडिट के, जो मैं आपको सेकंड चैप्टर में सिखाने वाला हूं। लैंग्वेज हैज अ फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हेंस टाइम बेस्ड चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट। सो लैंग्वेज हैज ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी लैंग्वेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का रूल रहता है। जैसे आप घर के अंदर गुजराती बोलते हो, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी, तो देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई टाइम बेस पर। सपोज
कोई कनाडा गया यहाँ से तो कनाडा की लैंग्वेज सीख लेगा, अगर कोई न्यूजीलैंड गया तो वहाँ की लैंग्वेज सीख लेगा, गुजराती है तो महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी सीख लेगा, राजस्थान में जाएगा तो मारवाड़ी सीख लेगा, मारवाड़ी लोग गुजरात में आएंगे तो गुजराती सीख लेंगे. सो लैंग्वेज हैज अ फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम बेस्ड चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट. तो अकाउंट के अंदर भी ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI, वो भी रूल्स चेंज करती रहती है. तो आप जैसे लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी है तो अकाउंट के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी. पहले देसी नामा मेथड यूज करते थे, और डबल एंट्री सिस्टम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिया. इन अकाउंटिंग ऑल्सो टाइम बेस्ड चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड. अकाउंट के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं. जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो जितने चेंज करवाती है तो वो अकाउंट के अंदर वो मेथड के अंदर भी चेंजेस आता रहता है. जैसे मैंने बोला, जैसे फिक्टिटिवस एसेट पहले लिखते थे, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बोला कि भाई ऐसी कोई एसेट होती ही नहीं, उसको निकाल दो, तो चेंजेस करना पड़ता है. इन ब्रीफ, accounting provides information of accounts, thus its work as a language. Now last question, describe the definition of accounting. ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट AICPA. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction, events, which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Accounting is an art. Account लिखने के लिए एक आर्ट होनी चाहिए. जब आप एक बार रूल्स डेबिट क्रेडिट के सीख लोगे तो आपके अंदर भी वो आर्ट डेवलप हो जाएगी. रिकॉर्डिंग, तो जो भी ट्रांजैक्शन है जिसका मनी के अंदर मेजरमेंट निकलता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है. फिर उसको क्लासीफाई करना है. जैसे कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसका आपको क्लासीफाइजिंग करना पड़ेगा कि वो परचेज है या सेल है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आपको क्लासीफाइंग करना पड़ेगा. एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तो आपको समराइजिंग भी करना पड़ेगा, उसका अच्छे से क्लासीफाइंग भी करना पड़ेगा. जैसे एसेट परचेज की तो वो करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, वो क्लासीफाइंग करना पड़ेगा. इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. जैसे अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो वो ये ट्रांजैक्शन हुआ, एक तरफ टीचर है तो सामने तरफ स्टूडेंट है. इवेंट्स मतलब बिजनेस के अंदर जो भी आप एक्ट करते हो वो आपके लिए इवेंट हो जाएगा. जैसे गुड्स 10,000 परचेज, दैट इज कॉल्ड इवेंट. 10,000 रुपीज मोबाइल परचेज, दैट इज कॉल्ड इवेंट. विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो फाइनेंशियल होने चाहिए, मनी के अंदर मेजरमेंट निकलना चाहिए. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, accounting year always starts on 1st April and ends with 31st March. तो जैसे आप एग्जाम देते हो तो फिर उसका रिजल्ट आता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको रिजल्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर. हाउ मच बिजनेस अर्न प्रॉफिट, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो रिजल्ट मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. तो आज बहुत अच्छे से क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है.